Hello, dear students. So, till now we have been discussing about the genetics and the two chapters which are dedicated to genetics in your syllabus. And as per your request, now I have started another chapter. And this particular unit, actually, this entire unit actually deals with the process of reproduction. So there are four chapters in this unit, and these chapters deal with reproduction in organisms, and right from the from reproduction in small organisms and various ways and modes of reproduction, and then this unit discusses reproduction in the plants. तो पहले डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो रिप्रोडक्शन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग इस यूनिट में। तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में किस तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ द टेक्निकल डिफिनीशन एंड व्हाट इज़ द टेक्निकल मीनिंग ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, and what are different ways and modes of sexual reproduction in different organisms। plants में कैसे होता है, lower organisms में कैसे होता है, higher organisms में क्या होता है, then eventually हम human में किस तरह से reproduction होता है वो स्टडी करेंगे। and finally at the end of this unit we will discuss the health aspects which are related to reproduction, uh, with keeping in mind about the reproductive system of the human beings। ठीक है, तो ये फोर चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। सो चैप्टर 1 इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, चैप्टर 2 इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, then chapter 3 is human reproduction, chapter 4 is reproductive health। So this chapter is actually in a way a good unit, and these chapters are in a way very important because these are small chapters and these are very scoring chapters from need point of view। ठीक है, इसमें कुछ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, बाकी बहुत ईजिली आप लर्न करते चले जाओगे। और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो चीज़ आपको समझ लेनी है। और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो you can cover a significant portion of marks in your board syllabus। Okay, so now let us discuss the chapter 1, which is which is first chapter of your biology syllabus in this class, as well as the first chapter of this first unit। So when we say reproduction, let us see what are the concepts and what is the need of the reproduction। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो चाहे लार्ज ऑर्गेनिज्म हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, irrespective of it, for any organism there will be birth of an organism, right? Then this organism will grow, it will develop, it will mature, right? And then it will produce certain offsprings। कुछ उसके ऑफस्प्रिंग होंगे, कुछ उसके प्रोजेनीज होंगे, वो पैदा होंगे। एंड देन इवेंचुअली दैट ऑर्गेनिज्म विल डाई। जो इसके ऑफस्प्रिंग होंगे वो बर्थ लेने के बाद अगेन दे विल ग्रो, मैच्योर, डेवलप, रिप्रोड्यूस, दे विल आल्सो डाई। अगेन देयर ऑफस्प्रिंग्स विल रिपीट द सेम साइकिल एंड दिस इज हाउ इट विल कंटिन्यू। ठीक, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट हैपन्स, if you take any organism, there is a certain period for which that particular organism lives, right? So this is technically termed as lifespan। So here you can see lifespan, and lifespan is nothing but it is defined as
a period from birth to natural death of an organism. Okay, लाइफ स्पैन जब ऑर्गेनिज्म बॉर्न हुआ, बर्थ हुआ, वहाँ से स्टार्ट होगा और उस ऑर्गेनिज्म की यूजुअली उस ऑर्गेनिज्म के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, नेचुरल डेथ उनकी कितने ईयर्स पे हो रही है उसका हम एवरेज निकाल करके एंड दैट विल बी कॉल्ड एज लाइफ स्पैन. ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म बॉर्न हुआ, बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, बट मान लीजिए देयर इज़ ए डियर और देयर इज़ ए गोट, it has born, it has grown up into adult, it has matured, but it is eaten upon by a tiger, so it dies suddenly, right? So the life of this particular deer or goat will not be its life span. लाइफ स्पैन क्या होगा, जितनी भी गोट्स हैं वो यूजुअली बॉर्न होने के बाद कितने साल तक जीती हैं और उसके बाद उनका नेचुरल जो डेथ होता है वो कब, कितने साल के बाद होता है, कितने मंथ्स या कितने टाइम पीरियड के बाद होता है, उसको एक एवरेज स्केल पे मेज़र कर लिया जाएगा और उसी को हम लाइफ स्पैन बोलेंगे. आपके टेक्स्ट बुक में लाइफ स्पैन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का दिया हुआ है, तो कुछ लाइफ स्पैन आपका होमवर्क दिया हुआ है. एक जो अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन है आप यहाँ पे देख लीजिए. बटरफ्लाई, इसका फ्यू डेज़ का ही लाइफ स्पैन होता है. आप देखिए 1 to 2 वीक्स है लाइफ स्पैन बटरफ्लाई का, राइट. उसके बाद लाइफ स्पैन आप देखिए क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स है, दिया हुआ है आपके सिलेबस, आपके बुक में. देन सिंपली आप इधर देखिए बनियान ट्री है, बनियान ट्री का थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होता है, राइट. फ्रूट फ्लाई अगेन फ्यू डेज. उसके बाद आप ये दो बर्ड्स देखिए, क्रो का लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स और पैरट का एवरेज लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स. अब यहाँ पे एक ध्यान देने की चीज़ ये है कि ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, फॉर दीज ऑर्गेनिजम्स द लाइफ स्पैन वेरीज ग्रेटली स्टार्टिंग फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. और टर्टॉइज के लिए फ्यू हंड्रेड ईयर्स, लाइक टर्टॉइज का यूजुअली जो है 300 ईयर 400 ईयर्स तक का लाइफ स्पैन बताया गया है. सो द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेरीज कंसिडरेबली, वेरीज ग्रेटली, and some organisms live for very short period of time, some organisms live for a very long period of time, right. You can see the life span of crocodile is 60 years, but life span of crow is 15 years. crow एक छोटा सा बर्ड है, क्रोकोडाइल एक बड़ा सा ह्यूज ऑर्गेनिज्म है, राइट. बट क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन कम है और क्रो का लाइफ स्पैन कम है, पैरट का लाइफ स्पैन ज़्यादा है, ठीक. तो यू कैन सी दैट लाइफ स्पैन इज़ एक्चुअली ए लिमिटेड पीरियड. लाइफ स्पैन जो है वो अनलिमिटेड नहीं होता है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इमॉर्टल. सो वी कैन से दैट लाइफ स्पैन की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, सो लाइफ स्पैन इज़ ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक. और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आप ये देख लीजिए कि देयर इज़ नो कोरिलेशन ऑफ लाइफ स्पैन विद द साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. आप ये दोनों बर्ड्स को देखिए, क्रो का साइज और पैरट का साइज, बोथ आर बर्ड्स, बोथ हैव सिमिलर साइजेस, राइट. बट द लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट जो है 10 टाइम्स है. क्रो 15 ईयर्स है, पैरट 140 ईयर्स. सो पैरट लिव्स फॉर 10 टाइम्स मोर देन ए क्रो, ठीक. तो इस तरह से जो उसका साइज़ है ऑर्गेनिज्म का, उस पर कोई कोरिलेशन नहीं है लाइफ स्पैन का. लाइफ स्पैन फ्यू डेज हो सकता है, फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स हो सकता है, फ्यू 100 ईयर्स हो सकता है, फ्यू 1000 ईयर भी हो सकता है. तो ये हो गया लाइफ, राइट. कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका लाइफ स्पैन जो हम एक क्लासिकल या टेक्निकल सेंस बोल रहे हैं कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो उनका लाइफ स्पैन यूजुअली लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम नहीं फॉलो करता है, ठीक. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूजुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम, बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स, दीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट
show a characteristic natural death, so that is why they are called as immortal. That means these organisms have birth, they grow, they mature, but there is no death usually associated with such organisms. Why there is no death associated with unicellular organisms? Because you can see here in this figure which I have drawn for you. आप देखिए एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है, ये ग्रो हुआ एंड इट स्टार्टेड डिवाइडिंग, फाइनली इट प्रोड्यूस टू ऑफ स्प्रिंग्स, राइट. तो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ, मैच्योर हुआ, रिप्रोड्यूस करके, और उससे दो ऑर्गेनिज्म बच गए. सो नाउ दिस सेल is no longer there, but this cell has not died, rather this cell has converted into two organisms. It has divided, it has fragmented itself, or it has divided itself into two organisms, into two cells. So this is how unicellular cell has divided, but there is no death, right? So that means when this single cell is growing, maturing, and then dividing into two cells, producing offsprings or daughter cells, and there is no natural death involved here in this process, and this kind of the reproduction of the unicellular organisms. That is why we call such reproduction as the reproduction, but these organisms are immortal, right? So we can also say that for this kind of unicellular organisms, actually the cell division is equivalent to the reproduction, right? Because यहाँ पे सेल एक से दो सेल में डिवाइड हो गया, and this is how this organism is reproducing, and this organism is producing its offspring. So whenever the cell division is equivalent to the reproduction, the organism is becoming immortal, and there is no natural death for the organism, right? And this happens where? In unicellular organisms. Unicellular organisms, as you know, Whitaker's classification, हमने देखा था कि विटेकर ने एंटायर लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में बांटा था, राइट. तो जो 5 किंगडम्स हैं विटेकर के, उसमें जो फर्स्ट किंगडम्स हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये 3 किंगडम्स हो गए. उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमलिया, राइट. तो मोनेरा और प्रोटिस्टा जो हैं, दे आर एक्चुअली unicellular, essentially unicellular organisms, right? So this kind of immortalism or no natural death is observed in single cellular or unicellular organisms. That means protists and monerans actually have this kind of the immortality common in these organisms. Okay, so now when we are saying, or when we are discussing about the reproduction, as you all know that an organism is born, it grows slowly, it matures, it develops. उसके जो भी ऑर्गन्स है, उसका स्ट्रेंथ है, उसका बॉडी का साइज़ है, वो सब मैच्योर होता है, डेवलप होता है, राइट. और वो अपने पीक साइज़ को पहुंच जाता है, उसने अपना अडल्टहुड को पहुंच जाता है. इवेंचुअली उसके बाद फिर ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है. बट इफ़ यू टेक एनी ऑर्गेनिज्म, व्हाट हैपेंस? द ऑर्गेनिजम्स आर बॉर्न, ऑर्गेनिजम्स ग्रो and they die, they follow this cycle. But during this process, however, though all the organisms are growing and dying, but the species is continuing. So organisms die, but the species continue. There is continuity of that species. बहुत सारे goats, बहुत सारे deer born होंगे, ग्रो होंगे, डेथ होगी उनकी. बट दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट विल कीप ऑन हैपनिंग, बट द स्पीशीज ऑफ द गोट सर्वाइव्स. गोट्स मरते रहेंगे बट स्पीशीज नहीं मरेगा, स्पीशीज सर्वाइव करेगा, स्पीशीज कंटिन्यू करेगा, राइट. सो व्हाट इज द प्रोसेस विच इज एंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज, राइट. सो माई क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोसेस which ensures the continuation of the species, though organisms keep on dying? So actually it is this process which ensures the species continuation, and it is called as the reproduction. ठीक. तो रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म मर जाता है, लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है
जो ऑर्गेनिज्म की डेथ होने के बावजूद स्पीशीज़ के कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है, स्पीशीज़ के कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है। और रिप्रोडक्शन के दौरान, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन व्हाट हैपेंस, द ऑफस्प्रिंग्स और यंग वंस during any kind of reproduction, offsprings or young ones similar to the parents or similar to the organism which is doing the reproduction, they are born। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या करेगा, उस ऑर्गेनिज्म के सिमिलर, देखने में सिमिलर होंगे, करेक्टरिस्टिक्स में, प्रॉपर्टीज़ में सिमिलर होंगे, सिमिलर यंग वंस, लेकिन साइज में छोटे होंगे, राइट, यंगर होंगे। तो दीज यंग वंस similar to the oneself, similar to the organism will be born। This is what happens after the reproduction। So what happens during a usual cycle, there is a birth of the organism, it grows and matures and reproduces eventually, and finally the organism dies, but the species continues, right? So what is the mechanism of the reproduction? Now we have seen what is reproduction, what is the importance of reproduction, right? But what is the mechanism of reproduction? So this is actually the thing, the mechanism of reproduction, what we will be discussing in this particular chapter, the first chapter, right? तो मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस दोनों के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी डिटेल्स हम थोड़ा जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोसेसेस होते हैं, वो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो टेक्निकल वेज हैं, वो सब हम इसमें समझेंगे एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ में। ठीक है, तो हम जब रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एज वी नो एंड वी हैव अप्रिशिएटेड इन द फर्स्ट यूनिट in your last year's syllabus that there is a huge diversity in the living organisms। जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग सिस्टम्स हमने देखा था, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, सारे किंगडम्स, फाइलम्स, डिविजन्स, वो सब स्टडी किए, राइट? तो वी ऑलरेडी हैव अप्रिशिएटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो एज द ऑर्गेनिजम्स and their diversity, their complexities, they are huge in the nature, the same way there is a huge diversity in the mechanism of reproduction as well। ठीक है, तो जिस तरह से ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, उसी तरह से मैकेनिज़म्स में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है उनके रिप्रोडक्शन के लिए। तो उसका जो मेजर जो फीचर्स हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या मॉड्स हो सकते हैं। तो अब जब आप रिप्रोडक्शन की बात करते हो, रिप्रोडक्शन हमने डिफाइन कैसे किया, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस वेयर ऑफस्प्रिंग्स और यंग वंस सिमिलर टू द पेरेंट और सिमिलर टू द वन सेल्फ आर प्रोड्यूस्ड, राइट? सो जब हम सिमिलर टू पेरेंट की बात करते हैं, तो उसमें दो सिचुएशन, दो पॉसिबिलिटी अराइज होती है। व्हाट आर टू पॉसिबिलिटीज? हियर इट इज मेंशन्ड। Some organisms may need one parent, some organisms may need two parents, right? मॉडर्न बायोलॉजी में अगर हम देखें तो इवन 3 पेरेंट्स का भी केस आ गया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। सो पार्टिसिपेशन ऑफ इधर वन ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स वन पेरेंट, और पार्टिसिपेशन ऑफ 2 organisms or 2 parents is involved in the reproduction, right? So based on this participation of how many organisms are involved, the reproduction has been divided majorly into 2 categories: asexual reproduction and sexual reproduction। In asexual reproduction there is a single parent involved. In sexual reproduction there is always 2 parents involved, okay? So what happens in asexual reproduction? For asexual reproduction, this single parent produces offspring or progeny or young ones which is similar to the organism itself। That means these organisms will be very similar, they will be identical offsprings, and there will be no gamete formation during the asexual reproduction। गैमीट क्या होता है ये आप ऑलरेडी जानते हो, हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो ड्यूरिंग asexual reproduction there will be single parent, there will be no gamete formation, and the offsprings will be identical। There is a technical term for
आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स विच इज़ कॉल्ड एज क्लोन्स. सो क्लोन का मतलब क्या होता है? Any organism, any group of organisms which are morphologically and genetically similar, they are called as clones. Okay, so this is a technical term for identical offsprings, and the when we say clone, this term refers to 100% identity both at morphological level as well as at genetic level. ओके, जो डीएनए सीक्वेंस है उसका वो एग्जैक्टली सेम होगा वो सारे ऑर्गेनिजम्स का जो एक दूसरे के क्लोन हैं. ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकली यानी एक्सटर्नल फीचर्स जो है देखने से उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसका अरेंजमेंट है, उसका अनाटॉमी है, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, वो सब बिल्कुल ही एक जैसा होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा. यूजुअली ड्यूरिंग asexual reproduction, clones are produced or identical offsprings are produced, and the reason is because there is no gamete formation. Okay, so when we say reproduction may happen in smaller organisms, that means in primitive organisms which are unicellular, as we have seen. In unicellular organisms the cell division is equivalent to the reproduction, and usually the unicellular organisms follow asexual reproduction. In higher organisms mostly we see sexual reproduction. So in uh, in the asexual reproduction, which is common in lower organisms, that means it is common in the protists and common in the monerans, right? मोनेरा क्या होता है आप ऑलरेडी देख चुके हैं. मोनेरन्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं. यूकैरियोट्स का जो किंगडम है वो है प्रोटिस्ट्स, राइट? तो जो एक मॉर्फोलॉजिक और जेनेटिक सिमिलरिटीज़ है उसकी बेसिस पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली देयर माइट बी गैमीट फॉर्मेशन, right, sometimes, but many times what happens that there will be no variation involved. that means जो ऑफस्प्रिंग हैं, ठीक है, एसेक्सुअल गैमीट्स जो हैं वो फॉर्म होंगे, बट उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो गैमीट के थ्रू सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगा पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, बट that will not change the genetic makeup. It will not change the information, or it will not change the properties of that organism. It will not introduce any variation during the during the asexual reproduction. ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके बहुत सारे मॉड्स होते हैं, इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं. प्लांट्स में बहुत सारे प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एनिमल्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. जो यूकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है. जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. देर आर सो मैनी प्लांट्स वेयर you observe asexual reproduction. There are many advantages also for asexual reproduction, but there are certain disadvantages as well for the asexual reproduction. What will be the disadvantages? In asexual reproduction there is a single parent, and usually rather always the offsprings will be similar, they will be identical to each other. So there will be no variation in the offsprings, and no variation in the offsprings actually means that there is a little scope for the evolution of that organism. So this reduced scope for the evolutionary processes to operate is actually a very great disadvantage for the asexual reproduction. But whenever there is sexual reproduction involved, there will be a variability component across the generation, and these organisms are more successful, and they will be more adaptable, they will be more successful in the nature. Okay, so ये सब डिटेल्स जो हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहले देखेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन डिटेल्स
कि किस तरह से वन पेरेंट इन्वॉल्व है, किस तरह से टू पेरेंट इन्वॉल्व है, क्या क्या डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं, क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे लोअर ऑर्गेनिज्म हो, या डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में किस तरह का मैकेनिज़्म होता है, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो गैमीट फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी। देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ द गैमीट्स, दीज गैमीट्स मैनी टाइम्स रादर मोस्टली आर फॉर्म्ड बाय मायोसिस। ठीक है, तो मोस्टली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमीट्स मायोसिस के थ्रू बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजुअली गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। ओके, तो इसके बारे में और जो टेक्निकल डिटेल्स हैं ये हम अब सेपरेटली, अभी हमने इस लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा इस चैप्टर का कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं, उसके मीनिंग हैं, क्या उसकी वैराइटीज़ हैं, क्या उसकी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, so I hope you will like and enjoy this lecture, and don't forget to make your notes whenever you have any doubt. Please ask me, and happy learning. Take care.